نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے پہلی چیز ہے ایمان. اگر بندے کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو وہ احکام اسلام کا مکلف نہیں ہے. کسی غیر مسلم کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج ادا کرو. تو پہلی چیز ہے کلمہ، ایمان. دوسری چیز نماز. یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے، تمام احکام اور شرائط کے ساتھ حج فرض ہوتا ہے، اور زکوٰۃ تمام احکام اور شرائط کے ساتھ سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے، اور سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے روزے فرض ہوتے ہیں اس کے تمام احکام اور شرائط کے ساتھ. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو روزانہ 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض کی جاتی ہے. جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان میں سے زکوٰۃ کا تیسرا نمبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہ پر جہاں خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے، یہ نہیں کہا کہ اے لوگو تم اپنے مال میں سے خرچ کرو، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اے لوگو میں نے تم کو جو مال دیا ہے تم اس مال میں سے خرچ کرو. اور فرمایا کہ اگر تم میرے اس مال میں سے جو میں نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہیں وہ سرفرازی اور وہ بلندیاں عطا فرمائے گا جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ قیامت کے دن ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی قسم کے غم اور پریشانی میں مبتلا ہوں گے. برخلاف اس کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور اپنے مال و دولت کو غریب غربا فقراء مساکین اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جگہ خرچ کرنے کے مصارف بتلائے ہیں ان جگہوں پر خرچ نہیں کرتے. الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. کہ جو اپنے مالوں کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں تو ان کو آپ عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. عذاب کی تو خوشخبری نہیں سنائی جاتی، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ مذاق اڑانا چاہتے ہیں کہ میں نے ان کو مال دیا ہے اور یہ میرے ان مصارف میں خرچ نہیں کر رہے ہیں جہاں خرچ کرنے کے لیے کہا ہے. اور پھر فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جہنم کو ان کے لیے تپایا جائے گا، اس کو دہکایا جائے گا، اور ان کی پیٹھوں کو، ان کے چہروں کو اور ان کی جو برابر کا حصہ ہوتا ہے اس کو داغا جائے گا. ویسے تو پورے جسم کو عذاب دیا جائے گا، لیکن خاص طور سے یہاں چہرے کا تذکرہ، پیشانی کا تذکرہ اس لیے کیا کہ جب کوئی غریب انسان کسی مالدار سے مانگنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی چہرے پر، اس کی پیشانی پر سلوٹیں آ جاتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ تمہاری پیشانی پر سلوٹیں آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہارے اس کنز کو، تمہارے اس مال کو، تمہاری اس دولت کو، اس کو داغے گا. آدمی کی پیشانی میں سلوٹ آتے ہیں، پھر وہ ادھر ادھر مڑتا ہے اور پھر وہ اس سے نہ دے کر کے واپس جاتا ہے. تو اس وجہ سے ان کا تذکرہ فرمایا کہ پہلے پیشانی کو اور پھر اس کی برابر کا جو حصہ ہوتا ہے کروٹ، اور پھر اس کی پیٹھ کو پیٹ دیکھا جو بھاگ گیا ہے. اور پھر فرمایا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. فرمایا جائے گا یہ ہے وہ مال، یہ ہے وہ دولت جسے تو نے اکٹھا کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اب اس کا عذاب. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف احادیث میں ارشاد فرمایا
बुखारी, मुस्लिम और तिरमिजी, इन सब में बहुत सारी रिवायात हैं इस बारे में। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी माल का हक अदा नहीं करता, यानी कि ज़कात नहीं देता, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके उस माल को गंजा सांप बना करके उसके गले में तोक बना कर उसके गले में आकर के कहेगा कि मैं तेरा वो खजाना हूँ कि जिसको तूने अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया था। तो मेरे मोहतरम, ये दरअसल जो माल है ये हमारा नहीं है, बल्कि इसके मालिक अल्लाह तबारक व ताला है। हमारी जान, हमारे माल, इन सब के मालिक अल्लाह तबारक व ताला है। हम समझते हैं कि ये माल हमने अपनी मेहनत से कमाया है, अपनी कोशिश से कमाया है, अपनी जिद्दोजहद, अपनी मेहनत और लगन से कमाया है। बेशक आपकी मेहनत और कोशिश लगी है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला का अगर रहम, फजल और करम ना होता तो आपके पास ये माल ना आता। आप देखते होंगे बहुत से आदमियों को, वो दो आदमी बिल्कुल लगातार मेहनत करते हैं, एक सा काम करते हैं, एक को अल्लाह तबारक व ताला बहुत ऊंचा पहुंचा देते हैं और एक में ही रहता है। तो आप सोचेंगे ये तो नाइंसाफी हुई। नहीं, अल्लाह तबारक व ताला की इसमें भी कुछ ना कुछ हिकमत होती है, मसलियत होती है। अल्लाह तबारक व ताला अपने हर उस बंदे को वो नहीं देता जो वो बंदा चाहता है, बल्कि अल्लाह अपने बंदे को हर वो चीज देता है कि जिसमें उसका फायदा होता है। तो अल्लाह माल भी उस आदमी को देता है कि जिसमें उसका फायदा होता है। अगर अल्लाह तबारक व ताला किसी एक ऐसे इंसान को माल दे दे कि जो उसका नाजायज फायदा उठाए, फिर वो अय्याशी में पड़ जाएगा, बर्बादी में पड़ जाएगा, अल्लाह की नाफरमानी में उतर जाएगा, तो याद रखें अल्लाह तबारक व ताला, इसीलिए याद रखें अल्लाह तबारक व ताला हर किसी को माल नहीं देता, हर किसी को दौलत नहीं देता, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे देता है। और अल्लाह मालिक है, जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे दे, उससे कौन सवाल करने वाला होता है। बहरहाल हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको अल्लाह तबारक व ताला ने जो माल दिया है उसको अल्लाह तबारक व ताला के रास्ते में खर्च करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान के ऊपर ज़कात कब वाजिब होती है। तो याद रखें, जब किसी इंसान के पास मर्द हो या औरत हो, आकिल हो, बालिग हो, समझदार हो, मुसलमान हो, जब किसी आदमी के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इतने पैसे कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, या माले तिजारत हो इतना, या किसी आदमी के पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है और थोड़े से पैसे हैं, इन सब को मिला करके अगर इतनी कीमत बन जाती है कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, तो उसके ऊपर, और उस माल को उसके पास रखे हुए 1 साल हो गया है, तो याद रखें उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है। और ज़कात भी अगर जब अल्लाह का दिया हुआ माल है, अल्लाह इसका मालिक है दरअसल, तो अगर अल्लाह चाहता तो तमाम माल का हमसे मुतालबा कर सकता था, मेरा माल है मुझे दो, लेकिन अल्लाह ने पूरे माल का मुतालबा नहीं किया, आधे माल का भी मुतालबा नहीं किया, बल तिहाई माल का भी मुतालबा नहीं किया। अल्लाह ने कहा कि सिर्फ 40वां हिस्सा मेरे रास्ते में खर्च करो, 2.5% दो, 40 रुपये में से 1 रुपया, 100 रुपये में 2.5 रुपये और 1 लाख रुपए में 2500 रुपये। इसी तरह आप इसका हिसाब लगा सकते हैं। बहरहाल हमें और आपको अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए, अपनी ज़कातों को अदा करना चाहिए। अगर याद रखें हमने ज़कात को सही हिसाब लगा करके अदा नहीं किया, तो अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपए भी होंगे तो और ज़कात का हमारे माल में 1 रुपया भी होगा तो वो 1 रुपये 1 करोड़ रुपयों को भी खराब कर देगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो ज़कात के मुस्तहिक लोग नहीं होते हैं, मालदार होते हैं, आप अगर उनको ज़कात के पैसे देंगे और कहेंगे कि ये ज़कात है मेरी तरफ से आप कबूल फरमा लीजिए, वो कहेंगे कि जी नहीं, हम क्यों ज़कात के पैसे ले, मैं ज़कात का मुस्तहिक थोड़ा ही हूँ। तो जब वहां आप ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ज़कात के पैसे को लेना नहीं चाहते, तो जो माल हमारे पास है उसमें अल्लाह ने ज़कात को वाजिब किया है, फ़र्ज किया है, तो अगर हम उसकी सही तरीके से ज़कात अदा नहीं करेंगे या उसमें 1 रुपया भी ऐसे रह गया कि जिसकी ज़कात अदा नहीं की, तो हम भी तो ज़कात खाने वाले बन गए। तो इसलिए हम सबको अपनी ज़कात का माल, अपने ज़कात के पैसे गरीब गुरबा को, फ़ुक़रा को, मसाकिन को, जो उसके मुस्तहिक़ीन हैं, उनको ढूंढ ढूंढ करके तलाश करके उनको देने चाहिए, उनको मुस्तहिक़ीन तक पहुंचाना चाहिए। ये तो अल्लाह का करम है, उसका एहसान है। उन लोगों का एहसानमंद होना चाहिए कि वो हमारे दर पर आते हैं। अल्लाह ने हमें देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया। गौर फरमाइए, अगर मंजर इसके बरखिलाफ होता, मंजर बदला हुआ होता कि हम मांगने वाले होते और वो देने वाले होते, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ
याद रखें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वहाँ बनाया हुआ है और उनको यहाँ बनाया हुआ है। और ज़कात ये इस वजह से दी जाती है, ज़कात का कॉन्सेप्ट इस्लाम में इसलिए है ताकि जो गरीब हैं अगर वो मालदार न बन सके तो कम से कम वो गरीब तो न रहे। अगर सारी दुनिया के मुसलमान सही तरीके से ज़कात अदा करें तो 5 साल के अंदर मुसलमानों की हालत ऐसी हो सकती है कि कोई भी मुसलमान गरीब न रहे, बल्कि अपनी सरकारों को और अपनी दूसरी तंजीमों को और जो भी इस तरह के खैर खैरात लेने वाले होते हैं उनको देने के लिए मुसलमान कम्युनिटी तैयार हो सकती है। इसलिए हमें इसको खुश दिली से अदा करना चाहिए, अपने ऊपर बोझ ना समझना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये माल हमारा नहीं है बल्कि ये तो गरीबों का है, फुकरा का है, मसाकिन का है, ये हमारा नहीं है। जब ये हमारा है ही नहीं, हम इसके मालिक ही नहीं है, ये तो गरीब गुरबा का है, इसलिए उनको ढूंढ करके अदा करने चाहिए। और आप अपने जो इलाके में आसपास में जो मदारिस हैं उनमें देखना चाहिए कि भाई इसमें मुस्तहिकीन तलबा हैं तो जा करके वहाँ देना चाहिए। यानी ये कहना चाहिए कि जी सब के सब बिल्कुल ये फ्रॉड होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने मदरसे के शेखुल हदीस हैं और मुफस्सिर कुरान हैं, लेकिन उन गरीब तलबा के लिए, मिस्कीन तलबा के लिए वो आपके दर पर आते हैं। हमें चाहिए कि हम उनको मायूस ना करें, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें। जब वो अपने मदरसे में होते हैं तो वहाँ के तलबा उनके ऊपर बाकायदा छतरियों से उनके ऊपर साया करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। आज वो हमारे दरमियान अगर आए हैं तो हमें भी उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि हाँ भाई ये ज़कात के मुस्तहिक हैं, सही मदरसे से आए हैं, तो उनकी रसीद ज़कात की मद में कटानी चाहिए। और अगर ज़कात में नहीं कटा सकते तो आप इमदाद की मद में उनको उनकी रसीद कटा सकते हैं, लेकिन उनको धुतकारना नहीं चाहिए। बहरहाल ये चंद मोटी मोटी बातें थी जो मैंने आप हजरात के सामने की। बकिया दीगर ज़कात के मसाइल मुझसे आप पर्सनल में आकर के मालूम कर सकते हैं। और मेरे पास एक ज़कात का चार्ट भी है जो हमारे एक बहुत ही अजीज़ और मोहतरम दोस्त जनाब मौलाना मुफ्ती बदर आलम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने उसको हिंदी में तैयार कराया है। आप उसको मुझसे ले लें और उसको पढ़ें और उस नक्शे के मुताबिक फिर देखें कि हमारे पास कितने पैसे हैं और हमें देने कितने हैं। आप टोटल इधर भी जोड़ें और इधर भी जोड़ें, जोड़ करके फिर देखें कि हमारे पास कितनी रकम बनती है, फिर कितनी उसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। ये इस तरीके से आप जुमे के बाद उसको मुझसे वसूल कर लें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।